हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 340 के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 340 क्या बताता है? 340 आर्टिकल बताता है पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अभी तो मैंने SC/ST जो आयोग है उसके बारे में बताया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में, और उसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण के बारे में बताया है। तीनों अनुच्छेद पढ़े हैं, 338, 338A और 339। अब मैं पढ़ूंगी 340 आर्टिकल, 340 अनुच्छेद। चलें स्टार्ट करें। 340 article is an 340 article says about the 340 article says about an appointment of a commission to investigate. 340 article says about an appointment of a commission to investigate the condition of backward classes. 340 article constitutions very important article 340 says about an appointment of a commission to investigate the conditions of backward classes. Number 1, the president may by order appoint a commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of the socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labor, and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any state to remove such difficulties and to improve their condition, and as to the grants that should be made for the purpose by the Union or any state, and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such commission shall define the procedure to be such such commission shall define the procedure to be followed by the commission. Number 2, a commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the president a report setting out the facts as found by them, and making such recommendations as they think recommendations as they think proper. Number 3, the president shall cause a copy of the report or represented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each house of the parliament. अब मैं इसको दोबारा पढ़ देती हूँ। 340 article says about an appointment of a commission to investigate the condition of backward classes. Number 1, the president may by order appoint a commission consisting of such persons as he thinks fit to investigate the conditions of socially and educationally backward classes within the territory of India and the difficulties under which they labor, and to make recommendations as to the steps that should be taken by the Union or any state to remove such difficulties and to improve their condition, and as to the grants
that should be made for the purpose by the union or an state, and the conditions subject to which such grants should be made, and the order appointing such commission shall define the procedure to be followed by the commission. Number second, a commission so appointed shall investigate the matters referred to them and present to the President a report setting out the facts and found by them, and making such recommendations as they think proper. Number third, the President shall cause a copy of the report presented together with a memorandum explaining the action taken thereon to be laid before each house of parliament. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 340 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में बात करता है। नंबर 1, राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, राष्ट्रपति क्या करेगा? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर राष्ट्रपति क्या करेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक, सोशली एंड एजुकेशनली रूप से जो पिछड़े हुए वर्गों की जो दशाएं हैं, जो उनकी दशाओं, उनकी कंडीशंस के बारे में, और जिन कठिनाइयों को वो वे वर्ग झेल रहे हैं, यानी पिछड़े जो वर्ग हैं जिन कठिनाइयों को झेल रहे हैं, उनके अन्वेषण, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, और उन कठिनाइयों को और जो भी उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करने की, और उनकी दशा को, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने और उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उपाय किए जाने चाहिए। या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, संघ करेगा, या फिर किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में, उन प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए। यहाँ पर ग्रांट्स की बात की जा रही, संघ अनुदान देगा, उनके सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म करने के लिए राज्य द्वारा ग्रांट्स अनुदान दिया जाएगा, और संघ के द्वारा भी दिया जाएगा। जिन शर्तों के अधीन वे अनुदान किए जाने चाहिए उनके बारे में सिफारिश करने के लिए, यहाँ पे क्या है? सिफारिश, रिकमेंडेशंस, अनुशंसाएं जो हैं वो सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आयोग नियुक्त कर सकेगा। इसके लिए क्या, एक पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति की बात हो रही है, और वो किसके बिहाफ पे किया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सुधारने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किए जाने चाहिए उनके बारे में, उन प्रयोजनों के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो अनुदान किए जाने चाहिए और जिन शर्तों के अधीन वे जो कंडीशंस हैं उनके अधीन ग्रांट्स किए जाने चाहिए, यानी अनुदान दिए जाने चाहिए, उनके बारे में सिफारिश करने के लिए आदेश द्वारा एक आदेश होगा। उसके तहत एक आयोग नियुक्त कर सकेगा, जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वे ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की के लिए एक 340 अनुच्छेद दिया है। उसके तहत ही ये पिछड़े वर्गों की जो दशाओं के अन्वेषण, शैक्षिक और सोशली और एजुकेशनली दृष्टि से जो पिछड़ापन है उनको दूर करना, उनके दशाओं की जांच पड़ताल करना, उसको दूर करना, इम्प्रूवमेंट लाना उसमें, उसके लिए ग्रांट्स देना, अनुदान देना संघ और राज्यों के द्वारा। तो ये काम किसका होगा? उस
आयोग का, उस कमीशन का कार्य होगा कि वह आयोग एक नियुक्त किया जाएगा और जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो वे ठीक समझे, और ऐसे आयोग को नियुक्त करने वाले आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। नंबर 2, इस प्रकार नियुक्त आयोग अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा और राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। जो रिपोर्ट्स हैं वो राष्ट्रपति को सौंपेगा। कौन? बैकवर्ड क्लासेस से बना हुआ कमीशन अपने को निर्देशित विषयों का अन्वेषण करेगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा जिसमें उसके द्वारा पाए गए तथ्य उपवर्णित किए जाएंगे, जिसमें ऐसी सिफारिशें भी की जाएंगी जिन्हें आयोग उचित समझे। नंबर 3, राष्ट्रपति इस प्रकार दिए गए प्रतिवेदन की एक प्रति उस पर की गई कार्यवाही को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। राष्ट्रपति का क्या काम होगा कि जो भी आयोग जांच पड़ताल करके उनकी दशा, उनकी कंडीशंस, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में बताएगा और प्रतिवेदन देगा, फिर राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा। फिर वो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस आयोग के माध्यम से उस पे कार्यवाही करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में रखा जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो संविधान की बुक लें, उसमें से पढ़ डालें। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 341। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अनुसूचित जातियां क्या हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। 341 अनुच्छेद और 342 अनुच्छेद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। संध्या मैम नाम का चैनल, आपका अपना भी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और संविधान को पढ़ें, वीडियोज़ को सुनें। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र।